Yes, welcome all of you in ज्ञान विविधय चैनल से श्री सुरेंद्र कापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय दुष्मतगढ़ और ज्ञान विविधय चैनल में आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों शास्त्री फर्स्ट ईयर इंग्लिश लिटरेचर दैट वी नॉट प्राउड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन डन। We can say that John Donne is a metaphysical poet. Metaphysical poet mostly used to write लिखा करते थे on the love and religion. It is a kind of tradition. They mostly used to write his points, their points on the topic death and religion. So we can say that John Donne is a metaphysical poet in English literature. First of all, we should know when and where was John Donne born. John Donne was born 22 January 1572. इनका जन्म 15 जनवरी 1572 को and he died in 31 March 1631 in London. He composed this poem 1609 and it was published on 1613. It is a kind of holy sonnet number 10. He wrote a series of sonnets, but that we not proud this poem is a holy sonnet number 10. When John Donne was 4 years old, his father was expired and he was brought up by his mother. And he went to college to become a lawyer and priest. He fell in love with Anne Moore, who was an employer relative, where he worked and employer there. She was relationship and Moore. When he got married, he had to face many kinds of problems. 12 years, and he became 1614 a priest, and he wrote a lot of religious prose. His poems are different varieties of color. When he expired 1631, and after his death, their poems were published and he became very popular after his death. In this poem, the poet personifies a kind of figure of speech. मानवीकरण अलंकार का नाम सुना होगा आपने। इस कविता के अंदर वो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करता है और डेथ को संबोधित करके उससे बातचीत करता है और वो कहता है डेथ इज नॉट माइटी एंड ग्रेटफुल। मृत्यु न तो ग्रेटफुल है न माइटी है। ओके, इन दिस सोनेट which is divided into two parts, octave and sextet. But Shakespeare and English sonnet is very popular in English literature. John Donne sonnet is not too popular in English literature. But however, we can say that this poem has a 14 lines. So it is a kind of sonnet. We know very well about the sonnet. Young and Surrey brought it from Italy to England. And it became very popular in English literature. In this sonnet, the problem is raised in octave and solution we can get in the sextet. And John Donne personifies death as a human being. वो कहने का मतलब मृत्यु से ऐसी बातें करता है जैसे कोई एक सजीव प्राणी हो, मानव से बातें करता हो। इस कविता के अंदर हम यही पढ़ेंगे और 14 लाइनों के अंदर क्या कहा गया है। आई एम रीडिंग दिस पोएम दैट वी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइट एंड ड्रेडफुल, सम कॉल इट इज ड्रेडफुल एंड माइटी, बट आई कंसीडर it is neither mighty
नॉट ड्रेडफुल। ये कहता है, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मृत्यु क्या है, भयानक है, लेकिन मैं ये मानता हूं मृत्यु बिल्कुल भी ना तो ड्रेडफुल है ना माइटी है। Thou and art not so, for those whom thou thinkest thou dost overthrow, die not poor death। कभी उसको poor death कहता है, उसको एक दया दिखाता है, he shows his pity on the death। देखो उसको कहता है poor death, oh yet cannot thou kill me। अरे तुम मेरे को नहीं मार सकती हो, तुम ये सोचते हो कि मैं, मृत्यु ये सोचती है कि मैं सब हर किसी को मार सकती हो, बट द पोइट कंसीडर दैट कैन नॉट किल मी, मुझे नहीं मार सकती है। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, ये तो एक प्रकार की रेस्ट है और स्लीप है ना। मृत्यु में देह पर सो जाते हैं और उसमें भी सो जाते हैं, नींद में जब पर सोते हैं, लेकिन मृत्यु में अपन अनंत रात्रि के लिए सो जाते हैं। और इस सोने में अपन क्या करते हैं, आफ्टर फ्यू आवर्स वी गेट अप, हम उठते हैं, लेकिन इसमें अपन उठते नहीं है। विच बट बाई ए पिक्चरस वी मच प्लीजर देन फ्रॉम दी मच लो एंड ए सुनेस आउट देन ए मैन विथ दाई डू गो रेस्ट ऑफ दी बोन्स एंड सॉल्व डिलीवरी। अब ये क्या कहता है कि लेकर के कहता है कि मरने के बाद कुछ जो पॉपुलर आदमी होते हैं उनको तुम मारते हो, लेकिन वो मरते नहीं है, बल्कि उनके शरीर से जो आत्मा निकलकर और दूसरे में चली जाती है। इसलिए मृत्यु तुम ये सोचती हो कि मैंने उस व्यक्ति को मारा है, लेकिन वास्तव में तुम खुद ही क्या हो, मरणशील हो। तुम उन व्यक्तियों की आत्मा को नहीं मार सकती। यू कैन डिस्ट्रॉय द फिजिकल बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि सोल कैसी है, एटर्नल है, अमर है। Thou art slave or fate, तुम तो खुद ही है, भाग्य का सहारा लेती हो, मृत्यु चांद का सहारा लेती हो, किंग राजाओं का सहारा लेती हो, एंड डिस्परेट मैन किसको बोलते हैं, यू नो अबाउट डिस्परेट मैन को बोलते हैं जो आत्महत्या या तो कर देते हैं या दूसरों की हत्या कर डालते हैं, या तो खुद आत्महत्या कर लेते हैं, kill himself and kill other people, तो उसको बोलते हैं डिस्परेट मैन। तो तुम तो खुद राजाओं का, भाग्य का, डिस्परेट मैन का, पॉइजन जहर का, एंड युद्ध वार युद्ध एंड सिकनेस ड्वेल, तुम तो खुद, ड्वेल का मतलब होता है रहना, तुम तो खुद ही सिकनेस के अंदर, बीमारी के अंदर, युद्धों के अंदर, पॉइजन के अंदर, डिस्परेट मैन, सन, फैट, किंग, इनके अंदर रहती हो तुम तो खुद ही, तुम इनका सपोर्ट लेती हो। तुम मृत्यु पावरफुल नहीं हो, ग्रेट नहीं हो, भाग्य नहीं हो, तुम तो एकदम क्या हो, डरपोक हो, टीवी हो, तुम हमें नहीं मार सकती। हम मरते हैं लेकिन हमारा शरीर मर जाता है, लेकिन हमारी जो सोल है वो दूसरी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है, चली जाती है, और हम अमृतता को प्राप्त करते हैं। एंड कॉफी मीन्स अफीम, एंड चार्ज कैन मेक स्लिप, है ना। अफीम को सुनकर, अफीम को देखकर हम क्या करते हैं, एक गहरी निद्रा के अंदर सो जाते हैं। एज वेल एंड बेटर देन दाई स्टॉक वाई स्वेल डाउन देन ओनली शॉर्ट स्लीप फर्स्ट वी वॉक एटर्नली। आपने एक क्रिश्चियन परंपरा के अंदर सुना होगा कि वन डे द डे ऑफ जजमेंट विल कम एंड ऑल द डेड बॉडीज विल अराउंड द ग्रेवयार्ड एंड गॉड विल पनिश अकॉर्डिंग देयर एक्ट। बताते हैं सारी बॉडियां है ना, वो एरिकेटेड हो जाएंगी, खड़ी हो जाएंगी, कहां से, अपनी ग्रेवयार्ड, अपनी स्थान से, और गॉड विल पनिश, भगवान उनको दंड देगा जैसे उन्होंने अपने कार्य किए हैं। तो ये क्रिश्चियन ट्रेडिशन है जो डर इस कविता के अंदर हमको दिखाता है कि ही हैड फीलिंग ऑफ डिवाइन पावर एंड दैट कैन वी नो मोर दैट दाउ शैल डाई। अतः मृत्यु तुम हमको क्या मारोगी, तुम तो खुद ही क्या हो जाओगी, मर जाओगी। तुम इन लोगों का सहारा लेती हो, है ना, अफीम का है या कोई वार का है, किंग का है, डिस्परेट मैन का है, तो तुम्हें लोग ये कहते हैं तुम बहुत माइटी एंड ग्रेटफुल हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूं तुम माइटी और ग्रेटफुल हो। लेकिन अगर हम नष्ट हुए तो हम तो एक दिन क्या होंगे, एटर्नली, वॉक एटर्नली, एक दिन अमरता को प्राप्त कर लेंगे। और क्योंकि हम अमृत
बॉडी वो जगेगी और भगवान उनके हिसाब से उनको क्या करेगा, दंड देगा उनके कर्मों के हिसाब से। इसलिए मृत्यु तुम खुद ही क्या हो, बरतशील हो। दिस पोएम विच वाज कंपोज्ड इन 69 एंड पब्लिश्ड इन 1630, ये कविता 1609 के अंदर लिखी गई थी और 1613 के अंदर पब्लिश हुई थी। एंड द पोएट personifies death as a human being, so we can say that the personification figure of speech is used in this poem. John Donne composed two poems which is prescribed in your course. First poem, Go and Catch a Falling Star, and second poem, Death Be Not Proud. And this poem, Death Be Not Proud and Go and Catch a Falling Star, one poem is related to the love and second poem is related to the religion. So we can say that a metaphysical poet mostly generally writes their poems on the two topics, love and religion. So John Donne, Go and Catch a Falling Star poem is a love poem and Death Be Not Proud is a religious poem. इसलिए ये एक religious poem है और वो एक कैसे कहता है, एक लव पोएम है। और इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक एंड सेलिएंट फीचर ऑफ ए मेटाफिजिकल पोएम। यही एक मेटाफिजिकल कविता होती है, तो विशेषता होती है कि मेटाफिजिकल कवि हमेशा जनरली दो बातों पर लिखते हैं, या तो वो लव पर लिखते हैं या वो धर्म पर लिखते हैं, या तो रिलीजन पर लिखते हैं या धर्म पर लिखते हैं। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, go and catch a falling star and that be not proud। ये दोनों that be not proud, तो एक कविता होगी आपके धर्म पर और एक कविता होगी आपके लव पर। यही मेटाफिजिकल कवि की विशेषता होती है और जॉन डन एक मेटाफिजिकल कवि के रूप में जाने जाते हैं। इस पोएम के आधार पर राइट ए क्रिटिकल एप्लीकेशन जॉन डन पोएम that be not proud and difference, context and explanation। लास्ट फोर लाइन की मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। इनका रेफरेंस एंड context and explanation because it is the concluding line of the poem and this poem is a kind of sonnet। ये एक प्रकार का सोनेट भी है। Keep practice, keep smile, thank you everybody and next day I will tell you next topic। Thank you।